I'm adjusting the screen little bit so that it can be comfortable to you. Okay. Okay, I think it is comfortable now. Let me adjust this only now. Okay. Small. Okay. So let us begin. So in linear algebra, we are studying about matrices and determinants. Right, और हमने बहुत सारी चीजें अभी तक देख ली है matrices and determinant के बारे में. Now let us learn one more important thing जिसके बेस पे से आप बहुत सारे questions expect कर सकते हैं. Right, and that thing is rank of the matrix. Okay, rank of matrix. So I think you must be knowing this. चलो किसको कितना पता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में उतना बताओ, so that I can know from where to begin. अगर आपको बिल्कुल याद नहीं है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, you will start from scratch. And if you know about rank of matrix, तो आपको जितना पता है वहां से हम शुरू करेंगे उतना रिवाइज करके. Right. चलो, what do you mean by rank of a matrix? रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? हाउ मेनी डेफिनेशंस आर देयर? और फॉर दैट डेफिनेशन आपको कौन से पोर्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है? ऐसा कुछ भी आपको याद है? नहीं याद है? ओके, नो इश्यू. तो पहले से शुरू करेंगे. सी हियर. सो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ओके, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एन इक्वलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स. क्या ऐसा याद है आपको? ओके, सो यस, नो इश्यू. ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन, उसके फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज in its echelon form. Okay. Now, number of non-zero rows in echelon form. और रैंक का सिंबल क्या था स्टूडेंट्स? रैंक ऑफ सिंबल वाज दिस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, योर सिंबल रो, isn't it? चलो, अब नॉन जीरो रोज इन इट्स इक्वलन फॉर्म. नाउ व्हाट इज इक्वलन फॉर्म? क्या इक्वलन फॉर्म आपको याद है स्टूडेंट्स? राइट. सो वी आर हैविंग two echelon forms, right? One is called a row echelon form, another one is called a reduced row echelon form. Okay, I'm teaching you both the forms now. Okay, or let us revise both the forms now. So echelon form, we are having two types of echelon form, students. One is row reduced, one is row echelon form, and another one is reduced row echelon form. Okay. Now, what is row echelon form? Understand this carefully. So if you write any matrix in this form, that here we are having something, below that you are having 0, after that here you are having something, below that you are having 0, after that here you are having something. Okay, so on above you can have something, but like that, like this, in this staircase you are having zeros. Okay, so this is called your row echelon form. Now what is your reduced row echelon form? So you are having here something, here two zeros, here something, it's above also 0, it's below also 0, here something, and it's above, all are zeros. Okay, so this is also one staircase. So this is called your reduced row echelon form. So first of all, row echelon form and reduced row echelon form हो गया.
आफ्टर कन्वर्टिंग रो इक्वलन फॉर्म, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको रो रैंक निकालना है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्वलन फॉर्म, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इट्स इक्वलन फॉर्म यू कैन फाइंड इट्स रैंक, राइट। अब वो रैंक आप कैसे फाइंड कर सकते हो, चलो लेट मी शो यू 2-3 एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिट। ओके, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। सी, सो आई एम राइटिंग हियर 5 मैट्रिसेस, आपको जस्ट मुझे बताना है कि उसका रैंक क्या होगा। ओके, so one by one I'll write those. So suppose this is my matrix A, in which I am having A1, B1, C1, D1, 0, B2, C2, D2, 0, 0, C3, D3. Okay, this is our matrix A. From this matrix I have to find its rank. चलो, हाँ, what is its rank students? रैंक का मतलब क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इट्स इक्वलन फॉर्म। ये इक्वलन फॉर्म है, चेक करो, स्टेयरकेस बन रही है, हाँ ये स्टेयरकेस बन रही है। ओके, एंड ये स्टेयरकेस के नीचे सब जीरो है, ये इक्वलन फॉर्म है। अब इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है? नॉन जीरो रोज मतलब, जीरो रोज का मतलब क्या है कि उसमें सारे रोज जीरो होंगे। ओके, और नॉन जीरो मतलब अगर एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है देन इट इज कॉल्ड योर नॉन जीरो रो। अब यहाँ पे आपके नॉन जीरो रोज कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3. So here number of non-zero rows are 3. So rank of A will be 3. Is it clear? क्या rank of A 3 पता चला? Okay. So in the same way, if I find about B, please students give me some response in chat box. Okay. Now suppose here I am having 0, A, B, C, 0, 0, D, E, 0, 0, 0, 0. Okay. सो लेट अस चेक, क्या ये इक्वलन फॉर्म है? राइट, आपका स्टेयर बनना चाहिए। यस, हियर वी आर हैविंग स्टेयर, स्टेयर के नीचे जीरो होना चाहिए, है ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा कॉलम है, जीरो एक्स्ट्रा चलेगा, नो इश्यू, हमें बस ये स्टेयर चाहिए, वो स्टेयर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो जाएंगी? सी, ये आपकी पूरी जीरो रो है, राइट, दिस इज योर जीरो रो, वी वांट नॉन जीरो रोज। ओके, नाउ अब नॉन जीरो रोज हम कैसे निकाल सकते हैं? So here these two are non-zero rows, isn't it? These two are your non-zero rows. So rank of B क्या हो जाएगा students? Please give me some response. What is rank of B now? How many number of non-zero rows B is having? 2. Very good. So rank of B will be 2. Right. Now I hope you got the point. चलो अब मैं फटाफट C लिख रहा हूँ, C के बारे में आप बताना, ठीक है। चलो, what will be rank of C over here? Can you able to see this C matrix? Very good. Rank of C is 2. Chalo, what about rank of D? Rank of D students, type in chat box. सोचो, number of non-zero rows.
Yes, 1. Right, 1, 1. Right, rank of D will be 1 because number of non-zero rows in its echelon form. ओके, और ये आपका इकलन फॉर्म ही है. इकलन फॉर्म के लिए आपके स्टेयरकेस होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपके स्टेयरकेस का बस एक ही फ्लोर बन रहा है. राइट, वो नीचे उतर ही नहीं रहा. नो इश्यू, ये चलेगा. हाँ, वो मुझे समझो, यही आपको डाउट होगा मुझे लगा. सी, स्टेयरकेस का एक रूल है आपके स्टेयरकेस में. राइट, ये जितना भी लंबा हो चलेगा. राइट, एक फ्लोर है, ये कितना भी लंबा हो चलेगा, बट ये आपका लंबा नहीं हो सकता. ठीक है, ये आपका लंबा हो सकता है. मीन्स योर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड योर हाइट एंड दिस इज कॉल्ड योर डिस्टेंस. डिस्टेंस आपकी लॉन्ग हो सकती है, हाइट चलेगा, लॉन्ग नहीं हो तो भी चलेगा. सो यहाँ पे आपका डिस्टेंस लॉन्ग है, कहीं पे नीचे उतर ही नहीं रहा है. सो यस, इट इज इक्वल फॉर्म. ओके, दिस इज ऑल्सो योर पार्ट ऑफ स्टेयरकेस. इज इट क्लियर? ओके, तो इसलिए रैंक ऑफ डी 1 होगा. दैट्स व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल. चलो, व्हाट अबाउट ई? हाँ, राइट, सी हियर. राइट, अगर आप सारे केस ऑब्जर्व करें तो डी आपका लॉन्ग जा ही रहा है डिस्टेंस. राइट, सो फॉर ई रैंक इज 2. सो आई होप रैंक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. ठीक है. अब इकलन फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? इकलन फॉर्म की प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको भी लिखा रहा हूं, समझना. सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इकलन फॉर्म, रैंक की मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन दिखाई. राइट, अब कोई भी मैट्रिक्स उसके इकलन फॉर्म में है, आइदर इट इज रो इकलन फॉर्म और रिड्यूस्ड रो इकलन फॉर्म, तो उसके लिए वो दो चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए. फर्स्ट, राइट, वो स्टेयरकेस याद रखने के लिए बोला. सो फर्स्ट कंडीशन इज number of leading rows should increase from top to bottom as number of rows increase. Okay, so number of leading zeros increase from top to bottom. अगर टॉप टू बॉटम में आपके नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस इंक्रीज कर रहे हैं, देन वी कैन से इट इज इन इक्वलन फॉर्म. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे फर्स्ट रो में अगर आप ए केस को देखो तो एक भी जीरो नहीं है. In second row, we are having one leading zero. Leading zero मतलब जो starting में आ रहा है, and here we are having two leading zeros. In B, I am having first here one leading zero, then two leading zeros, and then four leading zeros. In C, 2 and then 5. Right. In D, here they are 3, but initially तो कुछ नहीं है ना, initially 0. So 0 के बाद 3 आया, कुछ तो increase हुआ. Right. And here 1, then 4 and 4. Okay. So number of leading zeros should increase from top to bottom, and the last thing is all zero rows, जितने भी आपके zero rows हैं, should be at bottom of the matrix. सारे zero rows आपके bottom में होने चाहिए. Right? You can see over here. सारे zero rows मतलब सारे के सारे zero. In case of C D E, B C D E, सब last में ही है. Okay, all zero rows are at the bottom. Then this is called your echelon form. तो ये echelon form की condition है. तो यहाँ पे हमने रैंक की डेफिनेशन देख ली. राइट, अब रैंक की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, उसके बाद हम रैंक के क्वेश्चंस देखेंगे. राइट, सो लेट अस सी सेकंड डेफिनेशन फॉर रैंक. सो दिस इज योर रैंक ऑफ मैट्रिक्स डेफिनेशन 1. सेकंड डेफिनेशन की अभी नहीं दिखाता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन. सेकंड पॉइंट फिर से सर. हाँ, ओके, सेकंड पॉइंट वापस समझा रहा हूँ. एंड सेकंड डेफिनेशन रैंक की अभी नहीं दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब दूंगा, नहीं तो अभी कंफ्यूजन होगा. ठीक है, सी सेकंड पॉइंट में वापस समझा रहा हूँ. ऑल जीरो रोज शुड बी एट बॉटम. जीरो रोज आपके जितने हैं वो बॉटम में होने चाहिए. तो सी ओवर हियर आपके बी मैट्रिक्स में जीरो रोज ये है. ओके, दिस इज योर जीरो रो. तो क्या वो बॉटम में है? इजंट इट? बॉटम मतलब एट द एंड, वो बिगिनिंग में नहीं होना चाहिए. पूरा ये जीरो नहीं होना चाहिए फर्स्ट रो. ठीक है, ये आपका जीरो रोज है. सो इट शुड बी एट बॉटम. all zero rows should be at bottom. All zero rows should be at bottom. All zero rows should be at bottom. So is it clear now? Second point. Okay, आपके number of leading zeros increase होने चाहिए और all zero rows should be at bottom. तो अगर ये दो condition satisfy हो रही है, then you can say that yes, it is in echelon form. Okay. So shall we move to next? सर मैट्रिक्स ए में Matrix.
हाँ यस ए। रोशन, हाँ कौन सा मैट्रिक्स? व्हाट इज योर क्वेश्चन रोशन? सर मैट्रिक्स ए में बॉटम रो ऑल जीरो बॉटम हाँ कहाँ है सर? नहीं नहीं, मैट्रिक्स अलग होंगे राइट, क्योंकि अगर मान लो मैं नीचे और भी बहुत सारे जीरो ऐड करता जा रहा हूँ तो मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। ओके, तो ये आपका 3x3 अरेंजमेंट है। अब सपोज इसी में मैं और एक जीरो ऐड कर रहा हूँ तो वो 4x3 हो जाएगा, 4 रो एंड 3 कॉलम हो जाएगी। सो बोथ मैट्रिसेस आर डिफरेंट। ओके, although it contains same elements but both matrices are different. So is it clear now? Okay, so shall we move to next question? क्या इसके बेस पे से हम क्वेश्चंस देखें? अब हमें कैसे करने क्वेश्चंस? ओके, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रैंक हमें कैसे फाइंड करना है। राइट, इन द क्वेश्चन अगर आपको बोला जाए कि रैंक कैसे फाइंड करना है, सो टू फाइंड एनी रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल फॉलो दिस प्रोसीजर। ओके, और उसके बेस पे से हम अब उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट अस सी दिस, टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ वी कैन फाइंड दैट। So to find rank of the matrix, you can follow this procedure. I am giving you detailed steps. So step 1, we will convert them into its echelon form. Right, हम मैट्रिक्स को इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इकलन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सो वी ऑल नो दैट इकलन फॉर्म को शॉर्टकट में हमने याद रखा स्टेयरकेस। ओके, इस तरीके से हमने पूरा स्टेयरकेस याद रखा। सो व्हाट वी विल डू नाउ, फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस एलिमेंट्स, ये स्टेयरकेस पे जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे इनको हम वन में कन्वर्ट कर देंगे पहले। ठीक है, सो विल कन्वर्ट दिस एलिमेंट्स, वी विल ट्राई टू गो लाइक दिस ओनली। ओके, सो हम क्या करेंगे कि सारे स्टेयरकेस पे जो एलिमेंट्स होंगे इन एलिमेंट्स को पहले वन में कन्वर्ट कर देंगे। सो विल कन्वर्ट देम टू वन, वन एंड वन। इज इट क्लियर? हम पहले इसको वन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वन उनके नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे राइट उन सबको हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस वन उनके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, सपोज इट इज वन 3x3, क्योंकि जनरली आपको 3x3 के ही क्वेश्चन होंगे, तो ये मैं आपको एक 3x3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, अगर आपको ये 3x3 का केस दिया गया है तो इसको फिर हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम कौन से रो ऑपरेशंस यूज करेंगे? तो वी विल यूज दिस रो ऑपरेशन फर्स्ट। हम आर आई और आर जे को इंटरचेंज करेंगे, हम दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट में याद रखो, अगर डिटर्मिनेंट में आप दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो तो क्या होता है, आपका डिटर्मिनेंट की साइन नेगेटिव हो जाती है। बट सिंस मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, आपको एक दूसरा मैट्रिक्स मिलेगा जो हमें ट्रांसफॉर्म होकर मिलेगा। दूसरा, हम कोई भी रो को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में आपको याद था कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता था, पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाती थी। राइट, k को हम बाहर निकाल देते थे वहां से। बट मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैट्रिक्स में ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड इन थर्ड विल यूज दिस प्रोसीजर जो हम कर रहे थे डिटर्मिनेंट में भी, कि आर आई में हम आर जे को ऐड कर रहे थे k से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो मैक्सिमम जीरोस लाने के लिए कर रहे थे वही यहाँ पे करना है, बट यहाँ पे जीरो इस फॉर्म में लाना है। सो एक बार इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपका रैंक क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। राइट, देन योर रैंक विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब उसके बेस से कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा, बट वो क्वेश्चन देखने से पहले राइट, एंड दिस ऑपरेशंस, ये जो सारी ऑपरेशंस हैं इन सबका एक पर्टिकुलर नाम है। दिस ऑपरेशंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। okay, these operations are called elementary operations. This is just for namesake. This is called your elementary operations. Okay, so let me show you now few properties of rank of special matrices, and then we can find its rank. So इसका step 2 क्या हो जाएगा? The rank of matrix is number of non-zero rows now. Okay, फिर आपको बस number of non-zero rows find करने, क्योंकि इकलन फॉर्म ऑलरेडी आपने ला दिया है। Okay, so it will be number of non-zero rows in this form. Okay, so now let us see next few properties. So first property here is, चलो मैं अगर rank of
आई मैट्रिक्स फाइंड कर रहा हूँ, तो रैंक ऑफ आई मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स? आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सपोज ये 3 by 3 है, सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, टेल मी इसका रैंक क्या होगा? यस 3, राइट। इफ इट इज 3 by 3 तो 3 होगा, 4 by 4 तो 4 होगा, 5 by 5 तो 5 होगा. So if your I is n by n matrix, right, then its rank will be n. Second, चलो अब मैं एक ले रहा हूँ रैंक, कोई भी ए मैट्रिक्स का फाइंड कर रहा हूँ, राइट, जो ए आपका m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम है. तो ए का मतलब रैंक आपको मिनिमम वैल्यू 1 मिलेगी, राइट, 1 से कम नहीं मिलेगा. एंड मैक्सिमम वैल्यू आपकी m और n इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो मिलेगी, ठीक है, उससे छोटा नहीं मिलेगा. तो ये आप याद रखना कि ए का रैंक मिनिमम वैल्यू आपको 1 मिलेगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी? m और n में से जो भी छोटा है वो, उससे बड़ा आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है. तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्टली पकड़ सकते हो, कुछ ऑप्शन आप डायरेक्टली पकड़ सकते हो. एंड रैंक ऑफ ओ मैट्रिक्स, सी दिस इज ओ मैट्रिक्स, ओ और जीरो को अलग करने के लिए मैं ओ को ऐसे लिखूंगा. सो रैंक ऑफ ओ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0. ओ मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज कॉल्ड योर ओ मैट्रिक्स, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपके होंगे 0, राइट. एंड इट कैन, ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर हो, वो कुछ भी हो सकता है. सो इट कैन बी योर m by n मैट्रिक्स. ओके, सो रैंक ऑफ ओ आपका 0 होगा. ओके, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ. हियर द प्रॉपर्टी इज rank of a diagonal matrix is equal to number of non-zero elements in its principal diagonal or reading diagonal. अगर रैंक आपको निकालना है कोई डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स हम ऑलरेडी देख के गए थे कि जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट ही होंगे. जैसे यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट 1 है, वहां पे कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7, तो वो आपके होंगे नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट, और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल. नॉन जीरो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें एक एलिमेंट भी जीरो आ गया तो वो माइनस हो जाएगा. नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन इट्स प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स. सर डाउट. हाँ बोलो 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 तब सर डायगोनल अगर हमारी मैट्रिक्स होगी, ठीक है, हाँ हाँ, तो उसमें सर आपने ऊपर एक बोला था कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो सिर्फ नीचे ही होनी चाहिए ना. हाँ हाँ हाँ, तो हम उसको कन्वर्ट करें ना, वो तो इक्वल. अगर डायगोनल में हाँ सेकंड एलिमेंट. हाँ, चलो यही डाउट है आपका, इजंट इट? हाँ सर, हाँ चलो सर. ठीक है, अब ये इक्वलन फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया जाए. अब इक्वलन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए, इक्वलन फॉर्म में का रूल क्या है आपका कि 0 रोज आपकी नीचे होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, अब 0 रोज में कन्वर्ट करने के लिए R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे. वी विल यूज दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन. इफ आई एम चेंजिंग R2 to R3, सो दिस मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड टू, अभी आपका कन्वर्ट हो जाएगा 5 0 0, R2 और R3 आपका इंटरचेंज हो गया, तो इट इज 0 0 3, इट इज 0 0 0, इजंट इट? अभी आपका इक्वलन फॉर्म आ गया. अब आप इसमें इसका रैंक फाइंड करो, तो रैंक क्या होगा? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. सो हियर योर रैंक विल बी 2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर आप वो मेथड फॉलो करो. अब हम प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? प्रॉपर्टी यूज करके आपका क्वेश्चन पूरा शॉर्टकट में खत्म हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट, अगर आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, सो फर्स्ट आइडेंटिफाई इट इज डायगोनल मैट्रिक्स. इज इट डायगोनल मैट्रिक्स? यस. अब डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक आप डायरेक्टली लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? इसमें मुझे नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स यहाँ पे कौन से हैं? एक एलिमेंट है 5 और दूसरा एलिमेंट है 3, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माई रैंक विल बी 2. इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की मदद से मैं ये पूरी प्रोसीजर करने से हम बच जाएंगे, हमारा काफी टाइम बच जाएगा. सो तत्सत ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? એટલે સર એટલે કોઈ પણ રો કે એટલે રો માં ખાલી એક ખાલી આંકડો હોવો જોઈએ 0 વગરનો, એટલે એને રેન્ક માટે ગણી શકાય એવું. Yes, yes. If in any row you are having a minimum one element also non-zero, then that row is called your non-zero row. Okay. If you are having one element also in the row, all the rest elements are zero, but that one element is non-zero, then that row is called non-zero row. Okay.
Anything else, Praveen? Okay. Shall we move to next question? Oh, wait 1 minute. Okay, yes. So, चल अब इसके बेस पे से कुछ क्वेश्चन देखते हैं और यस एंड वन थिंग और एक भी है हमारे पास प्रॉपर्टी, राइट? लेट मी शो यू दैट प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी का मीनिंग मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी सिर्फ वो देख लो। ओके, दैट प्रॉपर्टी इज रैंक ऑफ एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सो रैंक ऑफ an elementary matrix. Wait, here my screen got stuck, I think. Okay, no issue. So rank of an elementary matrix, अगर आप मैं कोई भी elementary matrix का रैंक निकाल रहा हूँ, आप पूछोगे सर elementary matrix क्या है, वो आपको तुरंत समझा रहा हूँ। वेट, so rank of an elementary matrix will be equal to the rank of corresponding unit matrix or order of matrix. It is rank of corresponding unit matrix. चलो, what is unit matrix? Unit matrix is nothing but your identity matrix I. उसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, उसी का नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अब वहां से एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे बोला जाता है? सो मैंने आपको बताया कि ये आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, आर आई आर जे, आर आई के आर आई इक्वल टू आर आई प्लस के आर जे, इसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा यूज कर रहा हूं, मैं यूनिट मैट्रिक्स में या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मैं कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, आफ्टर यूजिंग दैट एलिमेंट्री ऑपरेशन मुझे जो भी मैट्रिक्स मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन। अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स के अंदर या कोई भी यूनिट या एलिमेंट्री मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने के बाद मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे मैं बोलूंगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, सो सपोज दिस इज माय आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 है। एक में ले रहा हूँ 2x2, 1 0 0 1। चलो, अब यहाँ पे मैं कोई रो ऑपरेशन यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है? चलो, 1 0 0 1 में मैं सपोज ये रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ कि R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में R2 को ऐड कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस मैट्रिक्स विल बी नाउ कन्वर्टेड टू R2 आपका एज इट इज रहेगा 0 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने इधर ऐड कर दिया, तो 1 + 0 इज 1, नाउ 0 + 2 वो हो जाएगा आपका 2। सो दिस इज कॉल्ड योर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे अगर मान लो मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैं R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये मैट्रिक्स जब आपका चेंज हो जाएगा न्यू मैट्रिक्स में, दैट इज 0 0 1 आपका ऊपर चला जाएगा, 1 0 0 नीचे आ जाएगा और बीच में आपका 0 1 0। ओके, तो ये दोनों आपकी चेंज हो गई, R1 और R3 आपके यहाँ पे चेंज हो गए। ओके, सो जब आपके R1 और R3 चेंज हो गए तो ये आपका एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गया। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक निकालना है तो इसका रैंक क्या होगा, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स, ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका रैंक क्या होता है 3, तो इसका रैंक डायरेक्टली हो जाएगा 3, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इसका रैंक हो जाएगा 2। ओके, अब वो क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। सो इज इट क्लियर नाउ? Any matrix that can be obtained from a unit matrix by applying only any one of the elementary operation on it is called elementary matrix। सिर्फ एक ही आपको elementary operation अप्लाई करना है। ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई? एक ही elementary operation। ओके, अब इसके बेस, हाँ यस सर ऊपर 3x3 માં સ્ટેરકેસ ફોલો નહીં થઈ રહ્યા તો કેવી રીતે કહેવાય? ओ, मैं अभी ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सी यहाँ से एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके रैंक इक्वल टू 3 डायरेक्ट प्रॉपर्टी से लिख रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से अगर आपको इसको इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? इसका रैंक निकालने के लिए तो इसको स्टेप बाय स्टेप इक्वलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हम इसी का रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम R3 और R1 को इंटरचेंज कर देंगे, तो उसके बाद वो इक्वलन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है?
क्योंकि मैंने बोला ये इकोलन फॉर्म लाने के लिए हमें क्या करेंगे, हाँ इकोलन फॉर्म लाने के लिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे ये स्टेयरकेस के फॉर्म में. विल यूज दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन टू कन्वर्ट इट इन इकोलन फॉर्म. इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे और उसी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम यहाँ पे आए हैं. ओके, सो हियर रोशन इज सजेस्टिंग दैट हिंदी एंड इंग्लिश प्लीज. ओके, सो प्रवीण इसका बस ध्यान रखो क्योंकि आपके डाउट की मदद से बाकी सबके डाउट्स भी सॉल्व होंगे. ठीक है, सो रोशन, प्रवीण वाज आस्किंग दैट this matrix is not in echelon form, right? This matrix is not in echelon form. Then how can I write from this matrix directly its rank is 3? I have written its rank is 3 because of this property. Okay, and to convert it in echelon form, उसको in echelon form में convert करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We will apply this. अरे no issue Praveen. Okay, so we'll apply this. Okay, we'll apply this over here or reverse process. So we can convert it into echelon form. Is it clear? Same thing here. We can apply reverse process of here, right? Or it is in echelon form directly. तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. Okay. So any other doubts, students? Shall we move to questions now? Okay. Please give me some response. Sir. Yes, Hitesh. सर ये 3x3 मैट्रिक्स तो पहले से ही इक्लन फॉर्म में है ना, क्योंकि हाँ, नीचे हाँ, स्टेयरकेस है, तो हाँ फिर बिल्कुल. अच्छा, तो फिर उसको मैंने इसमें क्यों कन्वर्ट किया, राइट? मैं अभी देखो यहाँ पे हाँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 है ना. हाँ, एग्जाम में ये हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स. मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या है. तो एग्जाम में ये हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. बट एग्जाम में अगर आपको ये दे दिया एलिमेंट्री मैट्रिक्स जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको समझा रहा था. ठीक है, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम डायरेक्ट उस तरफ जा सकते हैं. ओके सर. राइट, ये बस मैं आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझा रहा था. ओके, एनी अदर डाउट? Shall we move to next questions? Okay, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके बाद. So I think now we are having already 12 बज गए, right? 12 बज गए हैं. So I will give you questions from homework. आप घर से ट्राई करें. फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका रैंक उसमें राइट आया है या रॉन्ग आया है. So your first matrix is, first matrix तो डायरेक्ट है ही. Okay, but okay, let me give you this first question based on this rank. So here we are having 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14. This is the 1 mark question. 25, 26, 27, 28. And 43, 44, 45, 46. तो ये घर से आप इसका रैंक फाइंड करने की कोशिश करना. इन द सेम पे एक सेकंड क्वेश्चन भी दे रहा हूँ. ओके, दिस इज योर 1 mark क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट. नाउ ये भी जो नेक्स्ट दे रहा हूँ वो भी आपका गेट 2012 में आया था क्वेश्चन. इट इज ऑफ गेट 2012. हियर दे आर गिवन यू 1997, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. ओके, इसका भी आपको फाइंड करना है. इसके बाद भी और क्वेश्चंस हैं बट अभी के लिए इतना काफी है. ओके, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपके होमवर्क के लिए रहेंगे. ठीक है. सो एनी अदर डाउट्स इन टुडेज सेशन? शैल वी एंड द मीटिंग? ओके, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आज अटेंड नहीं किया, प्लीज उनसे पूछें व्हाट इज द इश्यू ऑफ टाइम. ठीक है, तो ऐसा है तो हम टाइम चेंज करेंगे क्योंकि ये वीक में ऑलरेडी 4 सेशन हो गए. अब हमें बस 2 सेशन लेने हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट? आफ्टर दैट विल स्टार्ट अवर रेगुलर क्लासेस. फिर जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए सारी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा ऑन सैटरडे. ओके, सैटरडेज क्लास. सो एनी अदर डाउट्स? शैल आई एंड द मीटिंग? Please give me some response.
Shall I end the meeting? Hitesh, Mahima, Praveen, Roshan, Tatsat? यस सर, Okay. यस सर. सर पहला बाकी ना क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन पीडीएफ में भेज दोगे ना? बाकी के वो आपको वो वाले क्वेश्चन में होमवर्क हाँ, वाला हाँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले में भेज रहा हूँ. गेट के लिए एक बुक है मेरे पास, मेड इजी की, एक स्टूडेंट को दी थी, तो उसका मैं कुछ ना कुछ सेटिंग कर रहा हूँ कि कैसे भी उसका स्कैन करके मैं मंगवा लूँ. तो उसकी बात चल रही है. तो गेट के क्वेश्चन जितने पॉसिबल होंगे मैं दूंगा. न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के मैं अभी भेज दूंगा. ओके ओके सर, थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे. सी यू इन द नेक्स्ट. ओके.